کسی زمانے میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ زندگی کے دن قریب ہیں، بیٹے کو نصیحت کرنی چاہیے تاکہ وہ زندگی آرام سے گزار سکے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ جنگل کے فلاں کنارے پر ایک دیودار کا درخت ہے جسے میں نے آج تک نہیں چھوا۔ کل تم اکیلے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاؤ گے کیونکہ یہ میرا آخری وقت ہے۔ یاد رکھنا بیٹا، تم بھی اس دیودار کو کبھی ہاتھ مت لگانا۔ جنگل سے جو چاہو کاٹ لینا، لیکن اس دیودار کو کبھی نہ کاٹنا۔ یہ کہہ کر لکڑہارا مر گیا۔ اس جملے کو کئی مہینے ہو گئے۔ ایک دن لکڑہارا کا بیٹا جنگل میں گیا۔ اس نے دیو کے درخت کو غور سے دیکھا اور پھر خود سے کہا، اس درخت میں کوئی خاص بات تو نظر نہیں آتی، کیوں نہ اسے کاٹا جائے۔ یہ کہہ کر اس نے کلہاڑی اٹھائی اور درخت کے تنے پر مارنے لگا۔ درخت سڑک کر تھوڑا پرے ہٹ گیا۔ لکڑہارا ایک قدم آگے بڑھا تو درخت اور بھی پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس نے درخت کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ درخت اس سے بھی تیز دوڑنے لگا۔ اب لکڑہارا تھک ہار کر اسی جگہ واپس آ گیا جہاں سے وہ چلا تھا۔ کلہاڑی کندھے پر رکھ کر گدھے پر سوار ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی، چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ لکڑہارا نے گدھے کو روکا اور رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ گدھے کو درخت سے باندھ دیا اور خود اوپر چڑھ کر ایک موٹی سی شاخ پر بیٹھ گیا۔ صبح ہوئی تو لکڑہارا درخت سے نیچے اترا، مگر وار قسمت، جس جگہ رات کو گدھا باندھا تھا وہاں ہڈیوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا اور چند قدم کے فاصلے پر وہی دیو کا درخت کھڑا تھا۔ لکڑہارا نے کلہاڑی کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، اب میں پیادہ ہی اس کا پیچھا کروں گا۔ دیودار کا درخت اور لکڑہارا آگے پیچھے چلتے ہوئے پہاڑوں پر گزرے، وادی اور میدانوں میں سے گزرے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ دن کا اجالا سمٹنے لگا۔ یہ رات بھی لکڑہارے نے ایک درخت پر بسر کی اور پھر صبح ہوتے ہی دیودار کے درخت کے پیچھے دوڑنے لگا۔ تیسرے دن ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے لکڑہارا دیو کے درخت کو بالکل بھول گیا۔ اچانک اس کے سامنے ایک ناگ اور ایک مست ہاتھی آ گئے۔ ناگ اور ہاتھی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ناگ ہاتھی کو نگلنے لگا، لیکن ہاتھی کے لمبے لمبے دانت رکاوٹ بن گئے اور ہاتھی ناگ کے حلقے میں جا کر پھنس گیا۔ لکڑہارے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بت بنا اسی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ ہاتھی نے جب لکڑہارے کو دیکھا تو مدد کے لیے چلایا، بچاؤ بچاؤ، خدا کے لیے اس ناگ کو مار دو، جب تک زندہ رہوں گا تمہارا احسان مند رہوں گا۔ ذرا اس ہاتھی کے دانت تو توڑ دو، ناگ نے بھی لکڑہارے سے درخواست کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے لکڑہارے نے کلہاڑی اٹھائی اور ہاتھی کے دانتوں پر مارا۔ دونوں دانت ٹوٹ کر دور جا گرے اور ناگ نے ہاتھی کو مکمل طور پر نکل لیا۔ اب ناگ نے بڑی اطمینان کے ساتھ لکڑہارے کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہیں اس کام کے بدلے بہت دولت دوں گا۔ یہ کہہ کر ناگ لکڑہارے کے ساتھ چلنے لگا۔ دونوں مزے مزے سے گپ شپ کرتے ہوئے چلتے رہے۔ راستے میں ایک جھیل آ گئی۔ ناگ نے لکڑہارے سے کہا، تم جہاں میرا انتظار کرو، میں تھوڑا نہا کر تازہ ہو لوں۔ اگر کوئی واقعہ پیش آئے تو ڈرنا مت، سمجھے؟ یہ کہہ کر ناگ پانی میں اتر گیا۔ اسی وقت تیز ہوائیں چلنے لگی، چیخنے چلانے والی اندھیری کے ساتھ تیز بارش بھی ہونے لگی۔ بجلی اس زور سے کڑکتی تھی کہ لگتا تھا آسمان پھٹ جائے گا۔ کالے کالے بادل ایک دوسرے سے ٹکرا کر ہولناک گرج پیدا کر رہے تھے۔ جب تک ناگ پانی میں نہاتا رہا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، اور جیسے ہی وہ باہر نکلا تو آندھی رک گئی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ نہا کر ناگ نے لکڑہارے کو بتایا کہ اب اس کی تھکن دور ہو چکی ہے، اب سفر آسانی سے کٹے گا۔ دونوں پھر چلنے لگے۔ راستے کے دونوں طرف کاسنی کے بے شمار پھول کھلے تھے۔ کبھی وہ انہیں توڑتے، کبھی ہنستے اور کبھی گاتے ناچتے۔ آخرکار انہیں ایک مکان نظر آیا۔ ناگ نے لکڑہارے سے کہا، یہ میری ماں کا گھر ہے، ہم اسی گھر میں جا رہے ہیں۔ جب میری ماں کو پتہ چلے گا کہ تم میرے بہترین دوست ہو تو وہ خوش ہو کر تمہیں مزے کا کھانا کھلائے گی۔ لکڑہارے نے کہا، کچھ کھانے کو تو مل جائے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ ناگ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، خبردار کچھ مت کھانا، بلکہ ماں سے یہ کہنا کہ دیودار کے درخت پر
लटका हुआ छोटा सा आईना दे दो। बातें करते करते वो घर के अंदर तक पहुंच गए। नाग ने दरवाजा खटखटाया। माँ ने फौरन दरवाजा खोल दिया। बेटे का हाल चाल दरियाफ्त करने के बाद पूछा कि ये अजनबी कौन है। नाग ने जवाब दिया, माँ जी ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये मेरा मोहसन है, इसने मेरी जान बचाई है, तो बेटा इसे अंदर ले आओ ना, दूध और गोश्त से इसकी खातिर करो, माँ ने कहा। लकड़हारा घर के अंदर तो चला गया मगर इसने खाने से इनकार कर दिया और बहाना ये बनाया कि इसे भूख नहीं है, वरना वो तो ज़रूर खाता। मगर बेटा तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, मैं तुम्हें बगैर खाए पिए कैसे जाने दे सकती हूँ, मुझे तो ये बुरा लग रहा है। अच्छा बेटा कुछ नहीं खाते तो कुछ तो तोहफा ही ले जाओ, नाग की माँ ने लकड़हारे से कहा। लकड़हारा ने झिझकते हुए कहा, आपके पास एक चीज़ है, मुझे वो मिल जाए तो मेरा सफ़र आसानी से गुजर जाएगा। माँ ने कहा, तुम नाम तलो मैं फ़ौरन दे दूंगी। लकड़हारे ने जल्दी से कहा, वो जो सामने दीवार के दरख्त पर आईना लटक रहा है वो मुझे दे दीजिए। माँ ने कहा, बड़ी मामूली सी चीज़ मांग रहे हो, बड़ी अजीब ख्वाहिश है तुम्हारी। लकड़हारे ने जवाब दिया, क्या खबर है, ये मामूली सा आईना ही मेरे सफ़र में काम आएगा। ठीक है बेटा, माँ ने इतना ही कहा और आईना उतार कर लकड़हारे को दे दिया। नाग और नाग की माँ से इजाज़त लेकर लकड़हारा दोबारा सफ़र पर रवाना हो गया। चलते चलते उसके जहन में आया कि नाग ने अपनी माँ से मुझे आईना क्यों दिलवाना चाहा, कुछ तो इसका मकसद ज़रूर होगा ना। ये सोचकर उसने जेब से आईना निकाला। इसकी पुश्त को इसने गौर से देखा, फिर उलटकर उसे सीधा किया और इसमें झांक कर अपनी शक्ल देखी, मगर आईने में उसे अपनी शक्ल की बजाय एक दियो नजर आया। उस दियो ने बड़े अदब से झुक कर कहा, क्या हुक्म है मेरे शहजादे। इस अजीब बात ने लकड़हारे के होश उड़ा दिए। वो 1 मिनट तक बुत बना खड़ा रहा। हैरत के मारे उसके मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। थोड़ी देर बाद उसे समझ में आया कि देव इसके हुक्म देने के लिए कह रहा है। इस वक्त लकड़हारे को बहुत जोर से भूख लगी थी। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। मुंह से अल्फाज निकलने की देर थी कि लकड़हारे के सामने एक दस्तरख्वान बिछ गया जिस पर किस्म किस्म के खाने चुने हुए थे। खाना इतना मज़ेदार था कि बेचारा लकड़हारा उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो आईने का यही मतलब है, लकड़हारे ने दिल ही दिल में कहा। यकीनन ये जादू का आईना है। इसने जेब से आईना निकाला और फिर इसमें झांका। देव फिर हाजिर हो गया और बोला, क्या हुक्म है शहजादे। अब बेचारा लकड़हारा कुछ नहीं समझ पा रहा था कि क्या मांगे। अचानक उसे ख्याल आया कि इसकी आओ भगत शहजादे की तरह होनी चाहिए। शहजादे के लिए तो महल भी होना चाहिए। इसने गुस्से से पूछा, मेरा महल कहाँ है। पलक झपकते ही वहाँ एक शानदार महल तैयार खड़ा था और इसके दरवाजे पर एक सदर खड़ा था। बादशाहों की तरह चलता हुआ और महल की सजावट को देखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बड़े बड़े कमरे में कीमती कालीन बिछे हुए थे। दरवाजों पर भारी पर्दे लटक रहे थे। लकड़हारा आईने की करामत देखकर हैरान हो रहा था। इसने दिल ही दिल में कहा, इस आलीशान महल में मेरे साथ मेरी बीवी का होना भी तो जरूरी है, और ये बीवी अगर बादशाह की बेटी हो तो वाह, आईने से बादशाह की शहजादी मांगनी चाहिए। ये ख्याल आते ही लकड़हारे ने आईने में झांका। देव ने हाजिर होकर पूछा, क्या हुक्म है मेरे आका। लकड़हारे ने उसे हुक्म दिया, बादशाह की बेटी मेरे सामने हाजिर करो। लम्हात शहजादी इसके सामने बैठी थी। लकड़हारा उसे पाकर बेहद खुश हुआ और इसने उसी दिन उससे शादी कर ली। शहजादी के इस तरह अचानक गायब हो जाने से शाही महल में खलबली मच गई। मुलाजमीन ने महल के कोने कोने में छान मारा मगर शहजादी का कहीं पता न मिला। आखिरकार बादशाह ने हुक्म दिया कि मुल्क भर में ये ऐलान कर दिया जाए कि जो शहजादी को तलाश करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शहजादी के मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि एक दिन एक बूढ़ी औरत महल में आई और कहने लगी कि मैं शहजादी के बारे में बादशाह से बात करना चाहती हूँ। बूढ़ी को फौरन बादशाह के सामने ले जाया गया। बूढ़ी औरत ने कहना शुरू किया, आपकी पूरी सल्तनत में शहजादी की कोई निशानी नहीं मिली। इससे जाहिर होता है कि वो किसी ऐसे मुल्क में गई है जो 7 समुंदर पार है, और यह भी मुमकिन है कि वो ऐसी जगह पर हो जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। इस पर बादशाह ने हैरत से कहा, आपकी क्या तजवीज़ है। पहले तो आप लकड़ी का एक संदूक बनवाने का हुक्म दें, फिर उस संदूक पर जश्न की चादर लगवाएं।
संदूक इतना बड़ा हो कि मैं उसके अंदर बैठ और लेट सकूं और मेरे साथ 9 दिन का राशन भी रखा जाए। जब मैं उसके अंदर बैठ जाऊं तो आप उसका ढक्कन मजबूती से बंद करके खुले समुद्र में फेंक देना। बादशाह को जहां से भी जरा सी उम्मीद नजर आती वो खुश हो जाता। इसने फौरन संदूक बनवाने का हुक्म दिया। फिर बूढ़ी औरत को संदूक में बिठाकर 9 दिन का खाना इसमें रख दिया। इसके बाद ढक्कन मजबूती से बंद करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की लहरें जल्दी ही संदूक को खुले पानी में ले गईं। संदूक दिन रात पानी की लहरों पर डोलता और बहता रहा। आखिर एक दिन सुबह के वक्त समुद्र के किनारे मछेरे ने जाल फेंका तो इनकी नजर इस संदूक पर पड़ी। ये साहिल इस मुल्क में था जहां वो लकड़हारे का महल था। मछेरे बाहर के रस्सों की मदद से इस संदूक को किनारे तक खींच लाए। संदूक खोलकर देखने का शौक सबको था। जल्दी ढकना खोला और जब अंदर देखा तो एक बूढ़ी औरत मौजूद थी। बूढ़ी ने अपने बारे में एक दर्द भरी कहानी सुनाई। इसने कहा कि इसके 2 मकार बेटों ने इसे संदूक में बंद करके समुद्र में फेंक दिया ताकि अपनी बूढ़ी माँ से छुटकारा पा सकें। बूढ़ी अपनी कहानी सुनाती गई और साथ साथ रोती गई। मछेरे को इस बूढ़ी पर रहम आ गया। बूढ़ी ने दरख्वास्त की कि वो इसे बादशाह के पास ले जाए। अगर वो नेक दिल है तो मेरी मदद जरूर करेगा। मछेरों ने बूढ़ी औरत को लकड़हारा के महल में ले जाया। वहां जाकर इसने बादशाह से बात करने की इजाजत मांगी, लेकिन उसे बादशाह की बजाय मलका के पास ले जाया गया। ये मलका वही शहजादी थी जिसकी तलाश में बूढ़ी औरत वहां तक पहुंची थी। बूढ़ी औरत ने पहली नजर में शहजादी को पहचान लिया और इसे भी वही कहानी सुनाई जो इसने मछेरों को सुनाई थी। फिर इसने मलका से दरख्वास्त की कि इसे महल में सर ढांपने के लिए जगह दी जाए, वो इसकी खिदमत करेगी। मलका ने अपने शोहर से मशवरा किया और जब वो मान गया तो इसने बूढ़ी औरत को अपने पास रख लिया। बूढ़ी औरत महल में रहने लगी। 1 महीना गुजर गया। बूढ़ी औरत को कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। सब नौकर कोई काम नहीं करते थे। सब काम खुद ब खुद हो जाते थे। महल का हर हिस्सा साफ सुथरा और चमकता दमकता रहता था। खाने का वक्त होता तो मजेदार खाना खुद ब खुद आ जाता। जब लकड़हारे के घर में मौजूदगी नहीं होती तो बूढ़ी औरत मलका के साथ घंटों बातें करती। वो मलका से बार बार पूछती थी कि महल के सबसे काम कौन करता है, बर्तन कौन धोता है और खाना कौन पकाता है। बूढ़ी औरत किसी तरह इन बातों का राज मालूम करना चाहती थी, मगर इन बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जादू के आईने के बारे में शहजादी को कुछ पता नहीं था। वो यही जवाब देती कि मेरे शोहर को इसके बारे में मालूम है, मुझे नहीं मालूम। बूढ़ी औरत बड़ी चालाकी से कहती, मलका आलिया आप इनकी बीवी हैं, वो आपको नहीं बताते कि महल के सब काम कौन करता है और बाहर का काम किसके सुपुर्द है। मुझे हैरत है कि आप कैसी बीवी हैं और आपके शोहर आपसे कैसी मोहब्बत करते हैं कि वो आपसे ये राज छुपाते हैं। ये राज जानना आपका हक है। बूढ़ी औरत हमेशा इसी किस्म की बातें मलका को सिखाती रहती। मलका तो बड़ी सादा थी। वो बूढ़ी की बातों में आ गई और परेशान सी रहने लगी। एक रात इसने मौका पाकर शोहर से पूछा, मुझे भी तो मालूम हो कि महल के इतने सारे काम कौन करता है। आप अच्छे शोहर हैं कि मुझे ये बात नहीं बताते। लकड़हारा ने मलका की बात न टाली और खुशी खुशी जादू के आईने के बारे में मलका को बता दिया। मलका ने खुशी से आईना हाथ में ले लिया। वो दिल बहलाने के लिए इसमें झांकी तो देव हाजिर हो जाता और पूछता, हुक्म मलका आलिया। शहजादी दिल लगी के लिए इसे इधर उधर दौड़ाती और खुश हो जाती। अगले रोज जब लकड़हारा हर रोज की तरह सैरो शिकार पर चला गया और बूढ़ी मलका के पास आकर बैठ गई तो मलका ने जादुई आईने के बारे में बूढ़ी को सारी बात बता दी। बूढ़ी ने चालाकी से पूछा, आईना कहाँ और कैसे काम करता है। मौका पाते ही बूढ़ी ने आईना चुरा लिया और देव को बुला लिया। देव ने आते ही पूछा, क्या हुक्म है ए बुजुर्ग औरत। बूढ़ी ने फौरन कहा, मुझे और शहजादी को फौरन बादशाह के महल में वापस पहुंचा दो। एक पल में दोनों बादशाह के महल में थी। बूढ़ी ने फिर से देव को हाजिर किया और हुक्म दिया कि जादुई महल को राख में बदल दिया जाए। अगले ही पल लकड़हारे का महल राख का ढेर बन गया। लकड़हारा शिकार के लिए बाहर गया हुआ था। जब वापस आया तो ना महल था और ना शहजादी, बस राख का एक ढेर था। वो सर पकड़कर बैठ गया। अब क्या करें। शहजादी ने अपने बाप के महल में जाने से पहले कच्चे गोश्त का एक टुकड़ा जादुई महल की एक बिल्ली को दिया था। महल जल गया तो बिल्ली किसी तरह बच गई। अब वो गोश्त का टुकड़ा
ढूंढती फिर रही थी। लकड़हारा भी बिल्ली के साथ साथ गोश्त का टुकड़ा तलाश करने लगा। जल्द ही गोश्त का टुकड़ा मिल गया। लकड़हारे ने गोश्त के टुकड़े को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक टुकड़ा बिल्ली के लिए था, बिल्ली के आगे डाल दिया और तीसरा हिस्सा अपनी जेब में रख लिया। अब यही टुकड़ा शहजादी की आखिरी निशानी रह गया था। वो टुकड़ा जेब में रख कर शहजादी को तलाश करने के लिए निकल खड़ा हुआ। वो मंजिलों पर मंजिलें तय करता रहा। पहाड़ और मैदान, दरिया और नाले, समुंदर इसके इरादे के सामने कुछ हकीकत न रखते थे और वो चलता रहा। आखिरकार वो मुल्क में पहुंचा जहां का बादशाह उसकी शहजादी का बाप था। लकड़हारा सीधा शाही दरबार में हाजिर हुआ और बावर्ची खाने में मुलाजमत के काम की दरख्वास्त थी। इत्फाक से शाही बावर्ची खाने में बर्तन धोने के लिए मुलाजमत की ज़रूरत थी। लकड़हारा खुश हो गया। अब वो किसी न किसी तरह शहजादी से मिलने का मौका तलाश करता रहा। वो हर वक्त चौकन्ना रहता। इसे यह खबर मिल चुकी थी कि शहजादी महल में वापस आ चुकी है। एक दिन शाही बावर्ची खाने का बूढ़ा बावर्ची खान अचानक बीमार हो गया। लकड़हारे ने इसे कहा, बड़े मियाँ आप बस देखते रहें, मैं सारा खाना तैयार करके दूंगा और डोंगा में सजा दूंगा। बूढ़ा बावर्ची राजी हो गया। लकड़हारे ने शाही बावर्ची खाने की हदायत के मुताबिक खाने सजाए और शहजादी की प्लेट में गोश्त का वो छोटा सा टुकड़ा भी रख दिया जिसे वो जादू का समझता था, जो वो महल से आते हुए बिल्ली को डाल आई थी। शहजादी भी अपने शौहर की जुदाई की वजह से बहुत बेचैन और परेशान थी और हर वक्त सोचती रहती थी कि शौहर को किस तरह तलाश करे। वक्त गुजरते गुजरते उससे मिलने की उम्मीद ख़त्म होती जा रही थी। जब इसने अपनी प्लेट में गोश्त का वो टुकड़ा देखा तो पहले तो वो परेशान हुई और फिर खुशी से उसका दिल धड़कने लगा। इसे फ़ौरन ख्याल आया कि इसका शौहर महल में मौजूद है और अब इससे मिलना मुश्किल नहीं। शहजादी ने बावर्ची को बुलाया और इसके खाने की खूब तारीफ की। फिर पूछा कि क्या बावर्ची खाने में कोई नया मुलाजम या आदमी रखा गया है, क्योंकि काम पहले से बेहतर होने लगा है। बावर्ची ने कहा, शहजादी साहिबा मैं बूढ़ा और बीमार हूँ। आज मुझसे काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने मददगार नौजवान से खाना पकवाने को कहा। ये नौजवान चंद रोज पहले ही मुलाजमत पर रखा गया है। अच्छा लड़का है बेचारा। शहजादी ने कहा, बड़े मियाँ आप जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी चाय इसी नौजवान के हाथ भेज दीजिएगा। जब मियाँ बीबी इतने लंबे अरसे की जुदाई के बाद मिले तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। शहजादी ने अपना एक एक किस्सा शौहर को सुनाया और उसने भी अपना सारा वाक़या बयान किया। अब दोनों ने मशवरा किया कि किसी तरह जादू के आईने को हासिल करना चाहिए ताकि वो दोबारा अपने महल में जाकर खुशी खुशी रह सकें। लेकिन वो जादू का आईना तो इस बूढ़ी औरत के पास था और वो हमेशा शहजादी के करीब रहती थी। बूढ़ी औरत ने शहजादे को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि वही शहजादे के लिए खाना और चाय लाता था। बूढ़ी औरत ने देव को बुलाया और हुक्म दिया कि लकड़हारे को इसके जले हुए महल में वापस पहुंचा दिया जाए। अगले ही लम्हे लकड़हारा राख के ढेर पर बैठा था। अब वो था और इसकी बिल्ली दोनों ही एक दूसरे के साथ ही थे। अब बिल्ली की कहानी सुनो। जब लकड़हारा महल छोड़कर चला गया और महल भी जलकर राख हो गया तो बिल्ली भूख से मरने लगी। मजबूरन चूहे पकड़ पकड़ कर खाने लगी। जब लकड़हारा वापस आया तो हालात बिगड़ चुके थे। वो इस तरह एक एक करके बिल्ली ने इसकी फौज के सारे सिपाही हड़प कर लिए थे। जब चूहों के बादशाह को पता लगा कि इंसानों का बादशाह अपनी सल्तनत में वापस आ चुका है तो इसने सोचा कि इंसाफ के लिए इंसानों के बादशाह के पास जाना चाहिए। वो लकड़हारा के पास पहुंचा और चिया चिया करके बोलने लगा, खुदा के लिए मदद फरमाइए। अगर आपकी बिल्ली यूं ही मेरे चूहे मार कर खाती रही तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारे ने बिल्ली से कहा, मैं तो चूहे को यहाँ से हटा दूंगा, मगर मेरा दुख कौन दूर करेगा। चूहे ने कहा, फरमाए आपको क्या दुख है, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। इस पर लकड़हारे ने चूहे को ये कहानी सारी सुना दी, शहजादी और महल के बारे में, जादू के साइने के बारे में और आखिर में इस चालाक बूढ़ी औरत के बारे में जो इसके मसले की वजह बनी थी। अच्छा तो ये बात है, चूहों के बादशाह ने ची ची करके दम हिलाई। आप अपनी बिल्ली को रोक कर मेरे सिपाहियों को बचा लो, मैं अपने सिपाहियों को भेजकर वो जादू का आईना मंगवा लूंगा। लकड़हारे की मुलाकात के बाद चूहों के बादशाह ने अपनी फौज को बुलाया और कहा कि वो चूहे आगे आए जो बादशाह के महल में अक्सर जाते रहते हैं। जब वो आगे आए तो इसने पूछा कि कौन कौन सा चूहा बूढ़ी औरत के बारे में जानता है।
تو ان میں سے ایک لنگڑا چوہا آگے آیا اور بولا، حضرت میں اسی بری عورت کے کنویں میں خوراک کی تلاش میں جاتا ہوں۔ میں نے جادو کا آئینہ اکثر اس کے ہاتھ میں دیکھا ہے، میں پتہ لگاؤں گا کہ وہ آئینہ کہاں رکھتی ہے تو تمہیں ابھی وہاں جانا ہے۔ چوہوں کے سردار نے حکم دیا اور جیسے بند پڑے اس آئینے کو یہاں لے آؤ۔ لنگڑے چوہے نے اپنے بادشاہ کے پاؤں کی زمین کو چوما اور کہا، عالی جاں آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میرے ہمراہ کچھ چوہوں کو بھیج دیا جائے، وہ مشکل وقت میں میری مدد کریں گے۔ چوہوں کے سردار نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ لنگڑا چوہا ایک چوہے کی پیٹھ پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا، باقی چوہے بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ 7 سمندر پار بادشاہ کی سلطنت میں پہنچ گئے۔ پہلے شاہی دربار میں داخل ہوئے اور پھر بوڑھی عورت کے کمرے میں گھس گئے۔ یہ رات کے کھانے کا وقت تھا۔ مکار بوڑھی عورت مزے سے کھانا کھا رہی تھی۔ وہ آرام سے بوڑھی عورت کے سونے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بوڑھی عورت کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہے تھے۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے بوڑھی عورت نے تقریباً 1000 بار آئینہ اٹھا کر دیکھا۔ جب نیند نے بہت ستایا تو تکیے پر سر رکھتی ہوئی سو گئی اور خرخر کرنے لگی۔ بوڑھی عورت کی خرخر سے چوہوں کو اس کے سونے کا یقین ہو گیا تو 3 چوہے کود کر بوڑھی عورت کے بستر میں گھس گئے۔ لنگڑے چوہے نے بوڑھی عورت کی ناک میں اپنی دم گھسانا شروع کی، جس سے بوڑھی عورت کو چھینکیں آنے لگی۔ دوسرے چوہے جو اپنے کام میں بہت تیز تھے جلدی سے آگے بڑھے اور بڑھیا نے جیسے ہی چھینکنے کے لیے تکیے سے سر اٹھایا، انہوں نے جادو کا آئینہ تکیے کے نیچے سے کھینچ لیا اور چوہے جلد ہی اس آئینے کے ساتھ اپنے چوہوں کا بادشاہ آئینے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے وعدے کے مطابق آئینہ لکڑہارے کے حوالے کر دیا۔ لکڑہارے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بلی کو بغل میں دبا کر چل پڑا۔ کچھ دور جا کر اس نے آئینہ نکالا اور دیو کو طلب کیا۔ دیو نے آتے ہی سر جھکاتے ہوئے کہا، کیا حکم ہے میرے شہزادے؟ لکڑہارے نے حکم دیا، میرے لیے لباس لاؤ، ایک شاندار گھوڑا اور ایک فوج بھی تیار کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاہانہ لباس پہنے اور بھاری فوج کے ساتھ بادشاہ کے محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بادشاہ کو جب لکڑہارے کی فوج اور شان و شوکت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی لکڑہارے کے ساتھ کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ نوجوان لکڑہارے اور شہزادی کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی اور ایک بڑی ضیافت کا انتظام کیا گیا۔ پورے محل میں چراغاں اور ہزاروں مہمانوں کی دعوت کی گئی۔ اب بری عورت کے بارے میں سنو۔ لکڑہارے نے دیو کو طلب کیا اور کہا، بری عورت کو اس کے اعمال کی سخت سزا ملنی چاہیے۔ بڑھیا اسی وقت محل سے غائب ہوگی اور پھر کبھی بھی محل میں نظر نہیں آئی۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔